SDGs and gender equality. Goal 5, Sustainable Development Goal का goal number 5, gender equality. Ending all discrimination against women and girls is not only a basic right. It's crucial for sustainable future of the nation, future of any country, not future of only the women, girls, or future of men. It's proven that empowering women and girls helps economic growth and development of the country because they are more than 50% population holding segment of the society. United Nations has made gender equality central to its work, and we have seen remarkable progress in the past 20 years, जिसमें मिलीनियम डेवलपमेंट गोल भी आया और उस मिलीनियम डेवलपमेंट गोल से बहुत ज़्यादा काम भी किया गया. There are more girls in schools now compared to last 15 years, and most regions have reached gender parity in प्राइमरी एजुकेशन. चूंकि वो प्राइमरी एजुकेशन को 100% अचीव करना मिलीनियम डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट था, तो उसमें बहुत सारे रीजन्स ने प्राइमरी एजुकेशन की जेंडर पैरिटी इंडेक्स हमने जेंडर कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया था, जो एजुकेशन को मेजर करता है, तो वो अचीव कर चुके हैं. तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं वो प्राइमरी लेवल में भी बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट है, इवन के हायर एजुकेशन लेवल में भी आप देखें तो उनकी इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है. बट although there are more women than ever in the labor market, there are still large inequality in some regions, even in Pakistan also, with women systematically denied the same work rights as men. अब systematically denied की जब बात हो रही है तो अब आपको समझ आ रही होगी, जो हम पिछले जेंडर के कॉन्सेप्ट्स में हमने बहुत सारी बातें की, आपको याद आ जाएगा कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की जहां बात हुई थी, तो ये एग्जैक्टली हम जो अब बात कर रहे हैं ये वो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है. सेक्सुअल वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, द अनइक्वल डिवीजन ऑफ अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क and discrimination in public offices all remain huge barrier. Climate change and disasters continue to have a disproportionate effect on women and children, as do conflict and migration. It is vital to give women equal rights, land and property, sexual and reproductive health rights, and to technology and the internet. Today, there are more women in public offices than ever before in Pakistan. But encouraging more women leaders will help to achieve greater gender equality in the country. हम कुछ facts देखें तो उसमें हम देखते हैं कि women earn only 77 cent, इसको जब calculate किया गया रेशो को, for every dollar that men get for the same work, कि हमें देखते हैं कि ख़वातीन को ऑलमोस्ट 33% उसी काम की लेस वेज मिल रही है. 35% of women have experienced physical or sexual violence. Women represent just 13% of agriculture land holders. Almost 750 million women and girls alive today were married before their 18th birthday. ये हम ग्लोबली थोड़े से फैक्ट्स देख रहे हैं. 2/3 of the developing countries have achieved gender parity in primary education. कि आप देखें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, 192-93 लोग ममालिक ने उस पर सिग्नेचर किए, तो हम देखते हैं कि 2/3 सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज थे जिन्होंने उस गोल का जो प्राइमरी एजुकेशन अचीव करने का था वो जेंडर पैरिटी अचीव कर सके. ओनली 24% ऑफ नेशनल पार्लियामेंटेरियंस वर वुमेन एज ऑफ नवंबर 2018. Ending all form of discrimination against women and girls is not only a basic human right, but it also crucial to accelerating sustainable development goal.
हम देख रहे हैं कि सिंस 2000 United Nation Development Program, together with UN partners and the rest of the global community, has made gender equality central to their work. कि अपने हर प्रोजेक्ट में, अपनी हर वर्किंग में जेंडर इक्वालिटी को वो सेंट्रल रोल दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा कि जो हमारी ख़वातीन हैं, जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इनको मेन स्ट्रीम में लाए बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में सोशली, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होना, डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। वी हैव सीन रिमार्केबल प्रोग्रेस सिंस देन। मोर गर्ल्स, आप देखते हैं कि स्कूलों में भी गर्ल्स आ गई, कॉलेजेस में भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद हम देखते हैं कि सीनियर पोजीशन पे, मिडल मैनेजमेंट पोजीशंस पे, और नो डाउट कि इस वक्त लेबर मार्केट में, वर्क प्लेसेस पे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन उस मुकाबले में ये रेशो बहुत कम है जिस मुकाबले में ख़वातीन पास आउट हो रही हैं। आप CSS में देखें ख़वातीन किस लेवल पे पास आउट हो रही हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें फीमेल्स किस लेवल पे पास आउट हो रही हैं। उस लेवल पे और उस दोनों रेशो को जब हम जेंडर एनालिसिस हमने डिस्कस किया था कि क्लोज एग्जामिनेशन है जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ का, तो जब हम जेंडर एनालिसिस करते हैं तो उस मुकाबले पे रेशो बहुत कम है ख़वातीन की डेवलपमेंट सेक्टर में आने की, प्रोग्रेस में आने की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आने की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम टू बिल्ड ऑन दीज अचीवमेंट्स टू इंश्योर that there is an end to discrimination against women and girls everywhere. So, women equal rights to economic resources such as land and property are vital target. तो इसी वजह से कि लैंड रिसोर्स में भी ख़वातीन का उनको उनमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, उनमें एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में भी बात करते हैं कि लैंड रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स के, लैंड रिफॉर्म के जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कि ख़वातीन को उनके इनहेरिटेंस राइट्स दिए जाएं, उनको लैंड की जो है उनके तमाम मामला जो हैं, तो वो भी इसी सिलसिले की ही एक कड़ी बनती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे बताया आपको, जेंडर इक्वालिटी गोल नंबर 5 है, तो उसका टारगेट 5.1 क्या है? एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल गर्ल्स and all women and girls everywhere. Target 5.2 क्या है उसका? And all violence against women and exploitation of women and girls. Eliminate all form of violence against all women and girls in public and private sectors. Target 5.3. Eliminate forced marriages and genital mutilation. Eliminate all form of हार्मफुल प्रैक्टिसेस, कि जो फोर्स मैरिजेस हैं, कम उम्री की शादियां हैं, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की जेनिटल से रिलेटेड कुछ इलाकों में जो रवायत पाई जाती है, उस तरह की तमाम तर प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जा सके। टारगेट 5.4 वैल्यू अनपेड केयर वर्क की है, कि जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में ख़वातीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी परफॉर्म कर रही हैं, जो जिनको वैल्यू नहीं दी जाती, जो अनपेड वर्क कंसिडर किया जाता है, उनको वैल्यू देना, उनको रिकॉग्नाइज करना। टारगेट 5.5 इंश्योर ऑल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, कि ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग में लेके आएँ। हम यहाँ पे बैठ के अगर ख़वातीन के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, जेंडर इक्वालिटी की कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो हमें ख़वातीन के मेन मसाइल का तो पता ही नहीं है, तो उनको डिसीजन मेकिंग में लेके आया जाए, उनको लीडरशिप पे लेके आया जाए। टारगेट 5.6 यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स ख़वातीन को मिलने चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक्सेस उन तक होनी चाहिए, वो उनको एक्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए। ये टारगेट 5.6 था। टारगेट 5A इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उनको। टारगेट 5B प्रमोट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल इंटरनेट का दौर है, तो उस टेक्नोलॉजी क्या तक भी ख़वातीन की रसाई प्रॉपर होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए,
अगर हम रूरल ख़वातीन की बात करते हैं तो रूरल ख़वातीन तक उनकी जो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन तक जो जो टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट है वो उन तक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। टारगेट 5C है अडॉप्ट एंड स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज एंड इनफोर्सेबल लेजिस्लेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। कि लेजिस्लेशन इस तरह की बनानी चाहिए और लेजिस्लेशन में रिफॉर्म्स लानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टारगेट्स सेट किए गए टारगेट्स हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेट किए गए टारगेट्स हैं, तमाम ममालिक की इस पे प्रॉपर कॉन्सेंसस से ये सेट किए गए हैं। बात ये रह जाती है कि फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। हमारे पास लॉ भी मौजूद हैं, इन सारी जो हमने बातें की हैं, जितने टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जितने टारगेट्स हैं, वो तमाम टारगेट्स हमारी पॉलिसी प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेटेड हैं ऑलरेडी। हम वर्क प्लेस पे वुमेन हरासमेंट का एक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स की बात करते हैं तो वो हमारे जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उसमें तमाम तर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। फिर एजुकेशन की हम बात करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। फिर हम अगर वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वुमेन का कोटा एक सेपरेटली रखा गया 15% तमाम तर भर्तियों में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। इन शॉर्ट के हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, हर पॉलिसी, हर प्रोग्राम, हर लॉ में सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। सिर्फ मसला हमारी अवेयरनेस का है, जनरल पब्लिक की अवेयरनेस का है, लोगों को अपने राइट्स पता होने का है, स्पेशली ख़वातीन को अपने राइट्स की अवेयरनेस की बहुत शदीद ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन को तो इतना ही नहीं पता होता कि 15% कोटा अवेलेबल है। बहुत सारी ख़वातीन जो वर्क प्लेस पे रोज़ जॉब करने जाती हैं, उनको इतना ही नहीं पता होता कि वर्क प्लेस पे अगर कोई हैरेसमेंट होती है तो वो कोई एक्ट भी मौजूद है, उन्होंने किसी जगह पे कंप्लेंट भी करनी है जाके। इसके अलग से बहुत सारे फैक्टर मौजूद हैं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्ट में मौजूद है कि हर इदारा अपने इदारे में जो है हैरेसमेंट कमेटियाँ नोटिफाई करेगा, ताकि वो प्रॉपर नोटिस बोर्ड पे लगी होंगी कि ये कमेटी के चेयर हैं, ये कमेटी के मेंबर्स हैं, तो अगर कोई ऐसा इशू होगा वहाँ पे वो कंप्लेंट करेंगे जाके। तो बहुत सारी जगहों पे कमेटियाँ नोटिफाई भी नहीं हुई होती हैं, अगर हुई होती हैं तो प्रॉपरली लोगों को कन्वे नहीं किया गया होता। तो इस तरह बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैरियर बनते हैं हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के और जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के। यही बैरियर्स हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के दरमियान भी हर्डल्स थी, लेकिन बहुत सारी एफर्ट्स के बावजूद, बहुत सारी एफर्ट्स भी हुई और बहुत सारी चेंज भी देखने में आ रही है, बहुत सारे रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी देखने में आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो अचीव करने के गोल्स हैं उससे अभी तक हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं।